Good morning all of you. Today we will do the revision of geography, chapter number 1 and 2, that is resource and land, soil and natural vegetation. So first we will do the revision of chapter number 1, that is resource. बात ये आती है कि रिसोर्स आखिर होते क्या हैं. रिसोर्स वो होते हैं जो हमारी बेसिक नीड को, हमारी डेली रूटीन लाइफ में हमारी नीड्स को, ऐसे सब्सटेंस जो फुलफिल करते हैं वो हमारे रिसोर्स कहलाते हैं. तो एनीथिंग दैट सेटिस्फाई आवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्स. देखिए, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज द रिसोर्स. Now, every resource has its utility. Every resource has its own utility. So, what is the utility? They have been all used by us is known as utility. कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी सब्सटेंस को जिसको हम डेली यूज में यूज लेते हैं, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई यूटिलिटी होती है, मतलब जिसको यूज किया जाता है. Every substance which we are using is having its own utility. तो देखिए, अगर हम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आज बात करें तो what do we mean by resource, ये हमारा क्वेश्चन बन गया 1 मार्क का. देन अगेन 1 मार्क का एक क्वेश्चन हमारा और बनता है, that is what is utility. Then all resources have its own utility and value. तो all resources have some value, लेकिन all resources have different types of value. तो all resources have its value. Value means worth. Again 1 mark question, it may come in your filling the blanks also. तो value means worth. देखिए, some resources have economic value, some do not. For example, metals may have an economic value. देखिए, again ये हमारा filling the blanks का बन गया. Metals may have an economic value. A beautiful landscape may not, but both are important and they satisfy human need. देखिए, मेटल भी हमारा एक रिसोर्स है और लैंडस्केप भी हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है. दोनों रिसोर्स की अपनी अपनी वैल्यू है, अपनी अपनी यूटिलिटी है. तो कहने का मतलब ये है कि सारे रिसोर्स की यूटिलिटी और वैल्यू अलग अलग होती है. दे कांट बी सेम. Some resources are economically valued with time. Now, there are the two factors which affect the resources. Again, 1 mark question arises here. There are the two important factors which can change substance into resources. One factor is time and second one is technology. They are the two important factors which helps to recognize our resources or which can change substance into resources. One is time, one is technology. Again 1 mark question arise here. ये आपका filling the blanks में भी आ सकता है और ये आपका 1 mark question में भी आ सकता है. Both are related to the needs of the people. People themselves are the most important resource. It is their basic ideas, knowledge, invention and discoveries that lead to the creation of more resource. अब बात आती है हमारे human resource की कि किस तरह से टेक्नोलॉजी और टाइम को यूटिलाइज करके ह्यूमन बीइंग ने हमारे रिसोर्स को ह्यूमन मेड रिसोर्स में डेवलप कर दिया है. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. नाउ देयर आर सम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर देयर, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्स. व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज? Resources that can be drawn from nature. What are the resources? What are the natural resources? Resources that are drawn from nature and used without any modification. ऐसे resources जो हमें naturally available हैं, उसके अंदर हम किसी तरह का कोई modification नहीं कर सकते. That are called natural resources. अब बात आती है इसके examples की. तो इसके एग्जाम्पल्स हो गए, एयर हो गया, वाटर हो गया, रिवर्स एंड लेक्स. तो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा. तो हम लिख सकते हैं बिल्कुल सिंपली फॉर्म में, रिसोर्सेज विच आर naturally
available and we can't do any modification, right? क्लियर हुआ ये आपको? अब इसके एग्जाम्पल्स हम लें तो हमारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं एयर है, वाटर है, रिवर्स है, लेक है एंड एक्सेट्रा. Now these natural resources may be of two types. One is renewable resource and second is non-renewable resource. First is renewable, second is non-renewable. जैसे कि हमारे ये वर्ड खुद अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं. रिन्यू मीन्स जिसको आप दोबारा रीजनरेट कर सकते हो, जिसको आप दोबारा रिन्यू कर सकते हो. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं हमारे are those which get renewed or replenished quickly, जिसको हम कम समय में दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं, दोबारा रिप्लेनिश कर सकते हैं. They are called renewable resources. Some of these are unlimited and are not affected by the human activities such as solar and wind energy. Yet careless use of the certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. Water seems to be an unlimited renewable resource, but shortage and drying up of the natural resources is a major problem in many parts of the world today. So what are the examples of renewable resources? Solar energy and wind energy. They are the two examples of renewable resources. तो समझ आया रिन्यूएबल क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम दोबारा रिन्यू कर सकते हैं क्विकली, दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं क्विकली, जिनको दोबारा रीजनरेट करने में, रिन्यू करने में हमें ज्यादा समय नहीं लगता. नाउ व्हाट आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? देखिए जस्ट उसका अपोजिट हो गया. ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते, या कुछ ऐसे रिसोर्स भी हो सकते हैं जिनको हम रिन्यू तो कर सकते हैं लेकिन इट टेक्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू रीजनरेट और रिप्लेनिश. देखिए इसकी डेफिनेशन. आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक. दे आर ऑल्सो लिमिटेड इन स्टॉक. वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड, अगर एक बार स्टॉक एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो इट मे टेक 1000 of years टू रिन्यू और रिप्लेनिश. आया समझ में? जिसको हम रीजनरेट तो कर सकते हैं, दोबारा रिन्यू तो कर सकते हैं, बट इट विल टेक 1000 of years. आइए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम. कोल, पेट्रोलियम. देखिए कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि ये ऐसे रिसोर्स हैं कोल, पेट्रोलियम, जिसको हम क्विकली रीजनरेट नहीं कर सकते. एग्जाम्पल्स हो गए. देखिए अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? 1 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हमने पढ़े. ये हम रिवीजन कर रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट. फर्स्ट रिसोर्स क्या होते हैं, सेकेंड यूटिलिटी क्या होता है, थर्ड वैल्यू क्या होती है, देन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर देयर, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन. नेचुरल को अगेन डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में. फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल, सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल. नाउ व्हाट इज द ह्यूमन मेड रिसोर्स? Sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. कई बार कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसका ओरिजिनल फॉर्म कुछ मॉडिफाई कर दिया जाता है with the help of human being. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. जिस तरह से एग्जाम्पल बताया गया है कि जब हमें आयरन एज ए नेचुरल रिसोर्स फाउंड हुआ था, जब ह्यूमन बीइंग नहीं जानता था कि उसको हमें आगे फर्दर किस तरह से उसको यूटिलाइज करना है, तो पीपल ने, ह्यूमन बीइंग ने जाना कि इस नेचुरल रिसोर्स को हम एज ए बिल्डिंग मटेरियल भी यूज में ले सकते हैं. दैट मीन्स आयरन हैज चेंज इट्स, iron has become resources after making some extraction in it by the human. It is also a good example of human made resource, iron. It is used in buildings, bridges, roads, machinery and vehicles. So such types of resources which are modified by the human resources, or we can say the natural resources which are modified by the human resources are called human made resource. Our good example is our phone.
mobile phone, our laptop, computers, and itself our digital board. These are resources which is made by human. So we can say they are the human made resources. People can make, अब हम बात करते हैं रिसोर्स और वो भी ह्यूमन की. हम बात करते हैं कि ह्यूमन कैसा रिसोर्स है. दैट मीन्स वी, हाउ वी कैन से अस टू आवरसेल्फ ह्यूमन. हम अपने आप को ह्यूमन कैसे कह सकते हैं कि पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज. अगर ह्यूमन बीइंग में नॉलेज है, स्किल है और टेक्नोलॉजी है, अगर तीनों को यूटिलाइज करके ह्यूमन बीइंग किसी रिसोर्स को कन्वर्ट कर देता है तो वो कहलाता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स. देखिए, ह्यूमन रिसोर्स रिफर्स टू द नंबर, दैट इज क्वांटिटी एंड एबिलिटी of the people through there are different views regarding treatment of human as a resource. One cannot deny the fact that it is the skills of human that help in transferring the physical material into a variable resource. इसका मतलब ये है कि human resource क्या करता है, अपनी human skill से एक substance को transfer कर देता है उसकी physical abilities के अंदर. तो it is the definition of human resource. Again it is 1 mark question. ये हमारा अगेन 1 mark question आ गया यहाँ पे. Now अब हम खुद जो पीपल है एक ह्यूमन रिसोर्स है, जब हम अभी बात कर रहे हैं तो एजुकेशन और हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें एनहेंस करता है आगे फर्दर डेवलपमेंट्स के लिए. इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्स इज नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. नाउ हम बात करते हैं हाउ टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज. आखिर हम इन रिसोर्सेज को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, इनको सेव कर सकते हैं. Using resources carefully and by giving them time to get renewed. हमें पता है कि ये हमारा जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है स्टॉक के अंदर, तो इट्स आवर ड्यूटी टू हाउ टू यूटिलाइज दैट रिसोर्स वेरी केयरफुली. हमें पता है कि ये वाला स्टॉक हमारे पास बहुत लिमिटेड अमाउंट में है और आगे जाके हो सकता है कि ये खत्म भी हो जाए, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि उस रिसोर्स को हम केयरफुली यूज में लें और हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अगर रिक्वायर है तो उसको सेव करके रखें. तो इट इज कॉल्ड द रिसोर्स कंजर्वेशन. तो अगेन 1 mark क्वेश्चन अराइजेस. देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनको हम मोस्टली छोड़ देते हैं कि एग्जाम्स में नहीं आएंगे, लेकिन यही जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जो बहुत छोटी छोटी की टर्म्स हैं हमारी, जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है. तो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. अब बात आती है कि हमें रिसोर्स को हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बैलेंस करके चलना है जिससे हमारी आने वाली जनरेशन हार्म ना हो सके और आने वाली जनरेशन उन रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सके. तो वो हमारा कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखिए होता क्या है, केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट besides meeting the requirement for the present also take care of the future generation. हमें पता है कि ये स्टॉक हमारे पास इतना अभी अवेलेबल है तो हम उसको खत्म ना करके आगे की फ्यूचर के लिए हम उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव कर करके, जिससे हमारा जो रिसोर्स का जो बैलेंसिंग चल रहा है, इकोलॉजिकल जो बैलेंस चल रहा है, वो किसी तरह से हार्म ना हो पाए. दैट इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. देखिए ये आता ही आता है हमारा क्वेश्चन और इसके जो हमारे 17 प्रिंसिपल्स हैं अराउंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, लेकिन हमारे कोर्स में भी 6 ही इंक्लूड हैं, तो हमें वो बहुत अच्छे से करने हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं. देखिए these are the some principles of sustainable development. First is respect and care for all forms of life, whether it is living thing or non-living thing, we have to respect and care of them. Then improve the quality of human life. हमें हमारी human life को enhance करना है day to day by learning and education skills.
नाउ कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। हमें अर्थ ने बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं। हमारी जो अर्थ है इट इज फुल विद डाइवर्सिटी, तो इट आर्स ड्यूटी टू कंजर्व दैट डाइवर्सिटी। देन मिनिमाइज द डेप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचुरली अवेलेबल तो हैं लेकिन हमें पता है कि वो लिमिटेड है, कभी भी नॉन रिन्यू हो सकते हैं वो, तो हमें ऐसे रिसोर्सेज का कम से कम यूटिलाइज करना है। देन चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। अगर हमसे एनवायरनमेंट को किसी तरह से कोई हार्म हो रहा है तो इट्स आवर ड्यूटी टू डोंट हार्म द एनवायरनमेंट, एंड हमें एनवायरनमेंट को लेके हमारा पर्सनल एटीट्यूड भी चेंज करना पड़ेगा। एनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। और हमें ऐसी कम्युनिटीज को और अवेयरनेस देनी होगी कैंपेन के थ्रू या जनरल मीटिंग्स के थ्रू। ये हम लोगों को मैसेज कन्वे करें कि वी शुड नॉट हार्म आवर एनवायरनमेंट बिकॉज एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग नेचुरल रिसोर्सेज टाइम टू टाइम। नाउ तो our first chapter is over. In the first chapter what we have done the renewable resources, non-renewable resources, then sustainable development, human made resources which is made by human. Then what is the resource having its own utility and value. So these are the some short questions which are very important. Now we will do our second chapter, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. These are the some important factors. You know, these are the some important factors of the resource. Land is itself a resource, soil is also a resource, water is also a resource, and natural vegetation and wildlife is also a resource. And these resources are very important for the human being. अगर land available है लेकिन how to utilize that land, उस लैंड को हमें कैसे यूटिलाइज करना है ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही जानता है, इसलिए हम ह्यूमन बीइंग को कंसीडर करते हैं एज अ रिसोर्स। चलिए अब हम बात करते हैं लैंड की। लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। ये हमारी अर्थ का 30% एरिया कवर करता है। एंड ऑल पार्ट ऑफ इट स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। देखिए हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स बनता है ये हमारा, और ये हमारे एमसीक्यू में भी आता है कि लैंड कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। नाउ व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए हर जगह लैंड अवेलेबल तो है लेकिन हर जगह लैंड हम कहें प्लेन है, दैट्स नॉट पॉसिबल। कई जगह हिली एरियाज हैं, कई जगह माउंटेन्स हैं, कई जगह हिमालयाज हैं, कई जगह रिवर्स हैं, कई जगह प्लेट्यूज हैं, कुछ एरियाज हमारे कोस्टल एरियाज हैं, राइट। तो जो हमारा लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, अनइक्वल है। तो व्हाट आर द मेन फैक्टर्स बिहाइंड दिस? The uneven distribution of population in different part of the world is mainly due to the various characteristics of land and climate. देखिए इसके जो रीजंस हैं, क्या क्या रीजन है पॉपुलेशन अनडिस्ट्रीब्यूशन के। फर्स्ट इज टोपोग्राफी। वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ का स्टीप स्लोप्स है क्या, लो लाइंग एरियाज हैं तो कैसे हैं, पानी अवेलेबल है, पेरिनियल रिवर्स हैं या पेनिनसुलर रिवर्स हैं। तो दीज आर द सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। लॉगिंग है क्या, पानी रुक जाता है, पानी एक जगह कलेक्ट हो जाता है। डेजर्ट एरिया है तो वो कितना एरिया हमारा डेजर्ट का है, क्या वहाँ पे फॉरेस्ट हैं तो कितने घने जंगल हैं या कम ही हैं। तो दीज आर द सम फैक्टर्स विच अफेक्ट आवर रिसोर्स। प्लेन्स एंड रिवर्स है एंड वैली ऑफर सुटेबल लैंड फॉर द एग्रीकल्चर। अगर कहीं प्लेन है, बिल्कुल समतल जगह है और उसके नियर बाय रिवर है तो दैट लैंड इज वेरी यूजफुल और फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। तो ऐसी जगह में आपको पॉपुलेशन भी ज्यादा मिलेगी। और जहाँ पे आपको डेजर्ट एरिया मिलता है, जहाँ पे लैंड की अवेलेबिलिटी है लेकिन डेजर्ट है, रिवर प्रॉपर नहीं है, पेरिनियल रिवर नहीं है वहां पर, तो हो सकता है कि वहां पर आपको स्पेर्सली पॉपुलेटेड मिले। नाउ अब हम बात करते हैं कि लैंड का यूज, हम लैंड को किस तरह से यूज करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं, पर्पस हैं कि किस तरह से हम लैंड को यूज करते हैं।
लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर। देखिए लैंड को हम कैसे कैसे यूज में ले सकते हैं, तो ये अगेन 1 मार्क का हमारा क्वेश्चन बनता है। लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, building houses, roads and setting up of industry. So these are the some important purpose through which we can utilize our land. This is commonly termed as land use. तो ये हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि what is land use? The use of land is determined by physical factors. अब हम लैंड को डिटरमाइन करते हैं कुछ फिजिकल फैक्टर्स है सच एज टोपोग्राफी, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ का सॉइल कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, मिनरल अवेलेबल है तो कितना है, वाटर अवेलेबल है तो कितना है। तो दीज आर द सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द विच हेल्प और इन डिटरमाइनिंग लैंड। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज द पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। लैंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। आप लैंड को हम क्लासिफाई करते हैं, लैंड किसी भी 2 तरह का हो सकता है, या तो प्राइवेट हो सकता है या पब्लिक हो सकता है। देखिए अगेन 1 मार्क क्वेश्चन, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड को हम पब्लिकली यूज में लेते हैं, पब्लिक लैंड जैसे हमारे ये सोसाइटीज वगैरह के अंदर जो होता है, गार्डन हो गया, आपका जिमिंग एरिया हो गया, ये सब। प्राइवेट इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल वेयर एज कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर द कॉमन यूजेस लाइक कलेक्शन ऑफ फूडर, fruits, nuts and medicinal herbs. These community lands are also called common property resource. Now, I hope आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर का दोबारा रिवीजन क्यों कर रहे हैं। There are the some reason due to which we are doing the revision. आपके जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं, आपके टर्म 1 आने वाले हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे हैं। ये थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मोस्टली हमारे एग्जाम्स में आते हैं, राइट। नाउ हाउ टू कंजर्व द लैंड। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज लेड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड एरेबल लैंड एंड हैज क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग देयर नेचुरल रिसोर्सेज। अब कई बार क्या होता है, पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, एग्रीकल्चर अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो बट ऑफ कोर्स हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इंप्रूव करना पड़ेगा हमें, उसमें भी डिमांड बढ़ जाएगी। एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ेगा तो टेक्नोलॉजी भी एडवांस आएगी। टेक्नोलॉजी के साथ साथ कई बार ये होता है कि हमारा जो फॉरेस्ट वाला एरिया है उसको खत्म कर दिया जाता है, डिस्ट्रक्शन कर दिया जाता है, और उस फॉरेस्ट एरिया को हमें खाली करवा के और वहां पर पॉपुलेशन को रिसाइड करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज के डेप्लीशन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम हम लैंड का डिग्रेडेशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा अफॉरेस्टेशन करें, लैंड रिक्लेमेशन करें। और अगर एग्रीकल्चर में हम केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में कम से कम केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज ले सकें, जिससे हमारी लैंड की फर्टिलिटी कभी भी खत्म नहीं होगी। और अगर ऐसा होता है तो एज वी ऑलरेडी नो अबाउट द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसके थ्रू हम हमारे लैंड को दोबारा फर्टिलाइज कर सकते हैं। नाउ द सॉइल, अगेन इट इज आवर सेकेंड रिसोर्स, दैट इज द सॉइल। द थिन लेयर ऑफ द ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉइल्ड। अगेन इट में कम इन द 1 मार्क क्वेश्चन। 1 मार्क में वापस ये आ सकता है हमारा कि सॉइल होता क्या है, तो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द सॉइल। आप ये भी लिख सकते हैं, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, right? It is closely linked to the land. Landform determine the type of soil. Soil is made up of organic matter, mineral and weathered rock. देखिए इसमें एक टर्म आ रही है हमारी वेदरिंग, इसके बारे में हम पढ़े। तो वेदरिंग क्या होता है, जब बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं, ऊपर के जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, ड्यू टू सम टेम्परेचर चेंजेस, फॉरेस्ट एक्शन, प्लांट्स एंड एनिमल एक्टिविटी,
के कारण जब वो टूट जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, देखिए पहाड़ जब ऊपर से कहीं टूटता है तो बहता हुआ पानी से आता है, पानी में बहकर आता है तो कई बार दो पत्थर आपस में टकराते हैं, फिर वो वापस जो रॉक होती है फिर वो ब्रेक डाउन हो जाती है, फिर वो पानी में बहती हुई घिसती हुई आती है, फिर कहीं जाके वो टकरा जाती है, फिर वो ब्रेक डाउन हो जाती है, तो उसको हम वेदरिंग कहते हैं। तो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म कि हमारी आती है कि वेदरिंग होता क्या है। तो ये वेदरिंग जो है हमारा वो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। देखिए ये हमारे सॉइल फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेदरिंग। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। और हमारी सॉइल फर्टाइल कब कहलाएगी? जब हमारी सॉइल के अंदर मिनरल्स होंगे और ऑर्गेनिक मैटर होंगे। तो अभी हमने पढ़ा लैंड एंड सॉइल के बारे में कि लैंड क्या होता है, लैंड को कैसे कंजर्व करना है, सॉइल क्या होता है, और अब हम पढ़ेंगे कि हमें सॉइल को कैसे कंजर्व करना है। देखिए पहले हम पढ़ेंगे सॉइल फॉर्मेशन के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे 6 मार्क में भी आता है, ये हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा सॉइल फॉर्मेशन के बारे में। देखिए हमारे सॉइल फॉर्मेशन के बारे में अगर हम पढ़ें तो हमारे 6 फैक्टर्स हैं, 5 फैक्टर्स हैं ये जो हमारे अफेक्ट करते हैं हमारे सॉइल फॉर्मेशन को। फर्स्ट है हमारा पेरेंट रॉक, देन रिलीफ, फ्लोरा एंड फौना एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लाइमेट एंड टाइम। ये जो हमारे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं सॉइल फॉर्मेशन के, ये बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तरह से हमारा कंपोजिशन डिफाइन करता है सॉइल का। अब देखिए सॉइल के बारे में फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्या होता है? ऊपर का हमारा जो टॉप मोस्ट रॉक जो होते हैं, जो हमें पत्थर मिलता है जिसकी हम बात करें, उसका कलर कैसा है? हर जगह का लैंड, हर जगह की सॉइल, उसका जो टेक्सचर होता है वो अलग अलग होता है, उसका फिजिकल अपीयरेंस जो होता है वो अलग अलग होता है। इसका कलर क्या है, इसका टेक्सचर क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वहां पे कौन सा मिनरल फाउंड होता है। तो फर्स्ट वन इज पेरेंट रॉक। देन हमारा आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट अफेक्ट करता है हमारे सॉइल फॉर्मेशन को कि सॉइल यहाँ की मिट्टी कैसी है, फर्टाइल है, अनफर्टाइल है, डेजर्ट ज्यादा है यहाँ पर, लोमी सॉइल ज्यादा है कि एलुवियल सॉइल ज्यादा है। तो ये सब हमारे पेरेंट रॉक के ऊपर डिपेंड करता है। फिर पेरेंट रॉक को अफेक्ट करता है हमारा, फर्स्ट है हमारा टेम्परेचर। वहां का टेम्परेचर कैसा है, वहां का रेनफॉल कैसा है, ज्यादा बारिश होती है कि कम बारिश होती है, वहां पे ह्यूमस फॉर्मेशन कैसा है, राइट। फिर हमारा आता है एल्टीट्यूड कि हमारा मिट्टी से कितना सी लेवल से कितना ऊंचा है। फिर फ्लोरा एंड फौना, वहां पे फॉरेस्ट की क्या कंडीशन है, राइट। फिर डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, किसी भी सॉइल को डेवलप होने में वहां पर कितना समय लग जाता है। तो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो आप इस तरह से इसको अगर बनाकर आते हैं तो यू विल स्कोर फुल मार्क्स। देन अब हम पढ़ेंगे देयर आर द सम मेथड्स और वी कैन से देयर आर द सम मेजर्स टू कंजर्व द सॉइल। अब हमें सॉइल को किस तरह से कंजर्व करना है, इट इज ऑल्सो आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हमारे मोस्टली एग्जाम में ये 6 मार्क का क्वेश्चन आता है कि क्या मेजर्स हैं हमारे कि हमको सॉइल को किस तरह से कंजर्व करना है। तो हमारा फर्स्ट मेथड जो है वो है हमारा मल्चिंग। फर्स्ट वन इज mulching. What is mulching? The bare ground between plant is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. कई बार क्या होता है, mulching क्या होता है, खाली ग्राउंड के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनके बीच में कुछ स्ट्रॉज लगा दी जाती हैं। प्लास्टिक की स्ट्रॉज नहीं होती हैं, वो हमारी जो स्ट्रॉ होती है वो ड्राई ग्रास की तरह होती है, लंबी लंबी, जो बीच में लगाई जाती है। वो किस लिए लगाई जाती है? जिससे जब उसमें पानी दिया जाए तो वो नमी को एब्जॉर्ब कर ले, उस पानी को एब्जॉर्ब कर ले और वो रेगुलर वो जो मॉइस्चर है वो प्लांट्स को सप्लाई होता रहे। तो दैट इज कॉल्ड द मल्चिंग। देन कंटूर बैरियर्स, स्टोन ग्रास एंड सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड द बैरियर्स अलोंग कंटूर्स। कंटूर बैरियर के अंदर जो ये प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं उनके बीच में हम यहाँ क्या करेंगे,
देखिए इसके बीच में हम यहाँ पर स्टोन्स लगा देते हैं या हम यहाँ पे ग्रास ग्रो कर देते हैं इस तरह से बीच में, जिससे हमारी जो मिट्टी है वो पानी से बह के इधर उधर नहीं जाएगी, वो वहीं पर ही ठहर जाती है, आगे नहीं जाती है। दैट इज अ कंटूर बैरियर। ट्रेंचेस बना दिए जाते हैं बीच में, जिससे पानी वहीं कलेक्ट हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रेंच बना दिया गया है जिससे पानी यहाँ आके कलेक्ट हो जाएगा और ये दोबारा रिटेन हो जाएगा। नाउ द रॉक डैम्स, रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ द वाटर। रॉक्स के बारे में हम जानते ही हैं कि रॉक डैम्स क्या होते हैं। देखिए जब ये डैम है, इस डैम के अंदर जब भी पानी छोड़ा जाता है तो यहाँ की जो दीवारें होती है काफी ऊंची बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? एक तरह से ये हर्डल होता है जिससे ये पानी के प्रेशर को कम कर सके, रोक सके, अदरवाइज ये हमारी लाइफ को और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा। तो जब भी हम रॉक डैम्स बनाते हैं तो यहाँ पे जो उनकी दीवारें जो होती है वो काफी ऊंची बनाई जाती है जिससे पानी के फ्लो को हम कम कर सके। देन हमारा आता है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग होता है हमारे स्टीप स्लोप्स पे जो हम फार्मिंग करते हैं। मेनली इट इज डन इन द हिली एरियाज। बोथ फ्लैट स्टेप और द टेरेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो दैट द सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। ये इस तरह की स्टीप फार्मिंग होती है जहाँ पे एक स्टीप पे पानी दिया जाता है, वो पानी बहता हुआ आगे नीचे आता जाता है और धीरे धीरे इसका फ्लो लास्ट वाली स्टेप पे आते आते कम हो जाता है, जिससे ना पानी बह के जाता है और ना ही पानी के साथ मिट्टी। तो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मेथड थ्रू विच वी कैन कंजर्व आवर सॉइल एंड वाटर बोथ। नाउ नेक्स्ट वन इज इंटरक्रॉपिंग। डिफरेंट crops are grown in alternate rows and are sown at different types to protect the soil from the rainwater। इसमें क्या होता है, हम डिफरेंट तरह की जो क्रॉप्स होती है वो यहाँ पे ग्रो कर देते हैं जिससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी यहाँ पर बनी हुई रहती है। देखिए यहाँ पे दो सेम तरह की क्रॉप हमने ग्रो कर ली और यहाँ पे एक डिफरेंट तरह की हमने क्रॉप ग्रो कर ली, जिससे अगर हम पानी यहाँ पर देते हैं तो पानी अगर बह के यहाँ आता है तो वो यहीं पर ठहर जाता है, वो आगे मिक्स नहीं हो पाता और ये पानी यहीं का यहीं अब्सॉर्ब कर लिया जाता है और इससे मिट्टी भी बह के नहीं जाती है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स हम ग्रो कर देते हैं। क्लियर? नाउ द कंटूर flowing parallel to the contour on a hill slope to form a natural barrier of water to flow down the slope। इसके अंदर it is mainly done in the hill slope areas जहां पे पैरेलल साथ में दो दो क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं और बीच में एक नेचुरल बैरियर्स होते हैं। या तो यहाँ पे फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट तो हम नहीं कहेंगे, अगर हम यहाँ कहें कि अलग तरह के यहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर दिए जाते हैं, ये नेचुरली हो जाता है। नाउ शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट्स होते हैं हमारे कोस्टल और ड्राई रीजन में। रोज ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट। कभी हम अगर हम हाईवेज पे देखते हैं या ड्राई रीजन में या कोस्टल एरियाज पे, यहाँ पे जो ट्रीज होती हैं वो पास ग्रो करी जाती हैं। ये हेल्प इन टू फाइंड आउट द विंड डायरेक्शन एंड इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल ऑल्सो। पास पेड़ होने से क्या होता है, जो सॉइल होती है वो उड़ के नहीं जा पाती है, क्योंकि यहाँ के जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, जिससे ये आगे पानी के साथ या हवा के साथ बह के नहीं जाती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 these are the some methods or the measures through which we can conserve our soil। clear? it is बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी आ सकता है, ये 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम। इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन किसी पे भी आ सकता है। सॉइल कंजर्वेशन के मेथड पूछे जा सकते हैं और मेनली जो हमारा क्वेश्चन अराइज होता है या तो वो कंटूर बैरियर का होता है या फिर शेल्टर बेल्ट का होता है। नाउ आज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज आर वाटर। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। ये हमारा देखिए, ये हमारा एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ये हमसे एमसीक्यू में पूछा जाता है that how much earth surface is covered with water, that is 33/4%, right? That means 70% of water and 30% is land. Clear? It was in primitive ocean in the life began almost 3.5 billion years back.
Even today, the ocean cover 2/3 of the Earth's surface and support a rich variety of the plants and animal life. As we already read in this chapter, we already know that our drinkable water it comes from our glaciers only. Now, how to conserve the water? हमें पानी को किस तरह से कंजर्व करना है? Even though water is a renewable resource, हमें पता है कि water क्या है, हमारा renewable resource है, ये हमारा filling the blanks में आता है. Its overuse and pollution make it unfit for use. Discharge of untreated or partially treated sewage, agriculture, chemicals and industrial effluent in water bodies are major contaminants. They pollute water with nitrates, metals and pesticides. देखिए कि किस तरह से जो हमारा वाटर है वो पोल्यूट हो रहा है, गंदा हो रहा है, हम उसको कंटेमिनेट कर रहे हैं, उसको पीने लायक नहीं रख रहे हैं. सारा जो एग्रीकल्चर का केमिकल है वो जाके हमारे पानी से मिल रहा है, हमारी जो फैक्ट्रीज से जो वेस्ट वगैरह है वो निकल रहा है, वो उसको हम पानी में जाके मिला देते हैं. इससे क्या होता है, पानी के अंदर जो नाइट्रेट्स होते हैं, पानी के अंदर नाइट्रेट्स मिल जाते हैं, मेटल मिल जाते हैं, पेस्टिसाइड मिल जाते हैं, जो हमारे वाटर को अनड्रिंकेबल बना देते हैं. Now come to our point, that is natural vegetation and wildlife. Natural vegetation and wildlife में हमारी बहुत ही दो important term आती है. First one is biosphere, second one is ecosystem. So what is biosphere? ये हम 6-7 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि biosphere आखिर होता क्या है. Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. As you already read about the layers of the atmosphere or layer of the environment, तो उसके अंदर ये हमारा प्रेजेंट होता है बायोस्फीयर, जिसके अंदर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग सर्वाइव करता है. इट इज नोन एज द बायोस्फीयर. बायोस्फीयर जो हमारा है रिलेटेड है, आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट फॉर ईच अदर फॉर सर्वाइवल. दैट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर. So what is that? It is biosphere. Now what is ecosystem? Ecosystem क्या होता है? हमारा लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम ही हमारा इकोसिस्टम कहलाता है. Vegetation and wildlife are valuable resources. Plant provide us timber. देखिए प्लांट के यूटिलाइज आ रहे हैं. प्लांट हमें क्या प्रोवाइड करता है? टिम्बर. शेल्टर देता है एनिमल्स को, प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट सॉइल. Two essential for growing crops. As a shelter belt, help in storage of underground water, give us fruits, nuts, latex, turpentine oil, gum, medicinal plant, and also the paper that is so essential for your studies. So these are the example of ecosystem and the biosphere. Now wildlife. Wildlife include animals, birds, insects, as well as the aquatic life forms. They provide us milk, hides, and wool. Insect like bees provide us honey. Help in the pollination of flowers, have an important role to play and decomposer in the ecosystem. The bird feed on insect, act as a decomposer as well. तो देखिए किस तरह से living and non-living organism एक दूसरे के ऊपर dependent है. The bird feed on insect, act as a decomposer as well. Vulture due to its ability to feed on dead livestock as a scavenger and considered a vital cleanser of the environment. So animals, big or small, all are integral in maintaining our ecological system. Now, distribution of natural vegetation. In areas of the heavy rainfall, huge trees may thrive. देखिए, natural vegetation जो है हमारा totally depend होता है हमारे temperature, moisture और हमारे of course rainfall पे. जहाँ पे ज्यादा अच्छी heavy rainfall होगी, वहाँ पे ज्यादा trees मिलेंगी, और जहाँ पे नहीं होंगी वहाँ पे हमें desert area मिलेगा, या जहाँ पे scarcity of water हो जाएगा. The forests are thus associated with areas having abundant water supply. As the amount of moisture decreases, the size of the trees and their density also reduce. जहाँ पे पानी कम होगा, जहाँ पे moisture की कमी होगी, वहाँ पे trees की size भी हमें कम मिलेगी, और घनी आबादी वाला क्षेत्र वो नहीं कहलाएगा. Short stem trees and the grasses grow in this region of the moderate rainfall, forming the grassland of the world. Thorny shrubs grown in dry areas of rainfall, as we already read in the 7th class. Tundra vegetation of the polar regions comprises of the mosses and the lichens. Today there are some people in the world
that they are the 2 centuries back to feed the growing numbers large area of forest having cleared to grow crops. जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे हमें फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ रहा था एंड देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्सेज. हालांकि हमें ये पता था कि हमें हमारे इन रिसोर्सेज जो वैल्यूएबल हैं उन्हें हमें कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन ड्यू टू द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन वी हैव टू वैनिश देम रैपिडली. Now, how to conserve these natural vegetation and the wildlife? Change of the climate and human interference can causes the loss of natural habit. जिस तरह से हम क्लाइमेट में इंटरफेयर कर रहे हैं, आज ह्यूमन क्या कर रहा है, क्लाइमेट के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है, तो हमारे यहाँ पे जो नेचुरल हैबिटेट है जो डे बाय डे रिड्यूस होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है. हमारे जो कुछ ऐसे एनिमल्स की स्पीशीज हैं जो एक्सटेंड हो गई हैं, जो दोबारा कभी आएगी ही नहीं, या हो सकता है कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जो एंडेंजर्ड है, तो we require to save them. So deforestation, soil erosion, constructional activities, forest fire, tsunami and landslide are some of the human and natural factors which accelerate the process of extinction of these resources. तो इन रिसोर्सेज को खत्म करने वाले कौन है? कुछ ह्यूमन बीइंग है और कुछ हमारा नेचुरल डिजास्टर्स हैं, which result in a sharp decline in the number of particular species and animals are poached for collection and illegal trade of hide, skins, nails, teeth, horns as well as feathers. Some of these animals are tiger, lion, elephant, deer, black buck, crocodile, rhinoceros, snow, leopard, ostrich and peacock. These can be conserved by increasing awareness. These are the some endangered species which we have to protect them. So due to reason of protecting them, we require some national park, some wildlife sanctuaries and biospheres are made to protect our natural vegetation and wildlife. Conservation of creeks, lakes and wetlands is necessary to save the precious resources from depletion. So there is a balance in the environment to be relative number of species not disturbed. तो हमारा क्या दायित्व बनता है? It's our duty to do not disturb or do not harm the environment. अगर ये खत्म हो जाएंगे, ये डेप्लीट हो जाएंगे, तो हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो टोटली खत्म हो जाएगा. तो व्हाट वी रिक्वायर टू सेव देम, टू कंजर्व देम एंड डू नॉट डिस्टर्ब द नेचुरल वेजिटेशन. तो देयर इज अ CITES. व्हाट इज CITES? CITES. An international convention has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited. तो हमारे कंट्री की तरफ से बहुत सारी कंट्रीज साथ में आई जिन्होंने एक लिस्ट बनाई है, बहुत सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स की स्पीशीज की एक लिस्ट बनाई है जिनको कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है. दैट इज CITES. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. ये हमारा 1 मार्क में भी आता है और हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी आता है. तो इट इज अबाउट आवर फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर. नाउ टुमारो वी विल डू आवर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर. तो इट इज chapter number 1 and 2 and chapter number 1 and 2 of geography. So these are the some important question answers which I told you here. So prepare them for your exam point of view. Today we have done the revision of 2 chapters. Tomorrow we will do revision of next 2 chapters. Thank you.